So branding, the discussion topic for today's class. So what does a brand mean? There is a definition given by American Marketing Association. So a brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of these all aspects. That means a brand is a name, term, sign, symbol or design or the combination of all these 5 items. Name, term, sign, symbol or design that is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. So a brand name or a brand is simply a name, a term, a sign, a symbol or design that has very objective of identifying the goods and services of one seller and also differentiate between one brand and to that of other brands. So the basic definition of brand is says that it is a name, a term. I don't know what happens in between my slides. It suddenly goes off. So a brand is a name, term, sign, symbol or design or a combination of them. That is the combination of these 5 items that is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. So a brand has very objective of first identifying one particular good or service and making differentiation or differentiate that service or good from those of competitors. So a brand may be a name like Nokia, a term that is again is a type of name, sign, symbol or design. Sign and symbol like if we uh, see the sign of or symbol of Olympics. So that is the circles that we have 5 circles. The sign of Olympic. Like if we go for any brand or we see any brand or any product in the marketplace, like automobile in the automobile sector. So various automobile companies have their own symbols. So that is the very objective of branding, that is I am making it visible to my customers and I am making a differentiation that this particular brand or this particular name, this particular term, this particular sign or symbol or even design belongs to my company. So that is the very first objective of brand, that is a name, term, sign, symbol or design or a combination of these 5 items that is intended to identify the goods or services of one seller and make differentiation among those goods and services from that of their competitors. So the brand has very objective of first it gives you an identity and second it makes differentiation or it makes difference between 2 brands. So this is the very first objective of branding. So it may be a name, it may be a term, it may be a sign, symbol or design, or it may be a combination of these 5 items. So like if we go in a some exhibitions, so there are some symbols or there are some designs that belongs to or the designs that don't have any particular brand, that they don't have any particular brand name. So that is the design that signifies yes, this is the uh, brand, this is a brand. Like in political party they have their own symbols, like if we talk about Lotus, it belongs to BJP. Like Broom, it belongs to Aam Aadmi Party. Like Hand, it belongs to Congress. So whatever. So brand can be a name, it may be a term, it may be a sign, symbol, or design, or even the combination of these 5 items. So that is the basic definition of brand, that says brand it is a name, term, sign, symbol, or design that is or combination of these 5 items that has very objective of identifying the goods and services
of one seller or group of sellers, and to differentiate them from those of competitors. So this is the very definition of branding. Okay. So a comprehensive definition given by Kotler and Keller, that is Philip Kotler and Kevin and Keller. So a brand is a product or service whose dimensions differentiate it in some way from other products or services designed to satisfy the same need. So when I am talking about the brand is a product or service whose dimensions, that is appearance, that may be the style, that may be the packaging style, the appearance, the uh, quantitative terms, or maybe quality, differentiate it in some way from other products or services. So I am making a difference between other products designed to satisfy the same need. So satisfying the same need or for the same purpose, I may have two brands, but those two brands might have unrelated to each other. They are from different companies. So likewise, I give you an example. Suppose we want to purchase a mobile phone. So in mobile phone, the very objective or very purpose of purchasing a mobile phone is same across all the mobile phones. So what I am trying to do with while I am purchasing a mobile phone, I will be making calls, uh, texting messages, using social media sites, making some official work through the various applications installed on it. Maybe I may be chatting on social media. So mobile phone is serving the same purpose, but I have different brands, different companies mobile phone, like Samsung, like Nokia, like Microsoft, like Oppo, like Redmi, like your Honor, Huawei Honor. So all these are the different brands, but what they are doing, they are satisfying the same need. They are serving the same purpose, but the name is different. So these differences, further the definition says, these differences may be functional, rational, or tangible, related to product performance of the brand. They may also be more symbolic, emotional, or intangible, related to what the brand represents or means in a more abstract sense. So these differences may be functional, like there is some functional difference between two brands. For example, if I purchase a mobile phone that operates on Android, there is another mobile phone that operates on iOS, or there is some another mobile phone that operates on other operating system. So there may be functional differences. Rational means I am making a cost benefit analysis, logical analysis. So I may be getting some special feature or some additional feature in one particular mobile phone that I may not be getting in some other mobile phone. Tangible, that is physical difference, that is visible. That may be designing. Some mobile phones have very appealing and very attractive designing. Some have 3D cover, 3D curved designing of glass, the front screen. Some have other designing. So the differences may be functional, they may be rational, based on some logics or some analysis of cost benefit, or tangible, that is visible differences in terms of designing, in terms of appearance. So these may be differences related to product performance of the brand. So that particular brand or that the set of brands may be having different or differences based on functional or some rational. Just a minute. Good morning, sir. सर बताइए सर, एक्चुअली क्लास चल रही थी सर बीबीए की। जी जी सर।
जी जी श्योर सर, मैं कर दूंगा सर। जी जी सर। जी 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 सर, ओनली abstract सर। जी जी सर। जी जी सर। ओके सर, हैव अ गुड डे सर। So, so the differences may be based on function, they may be on based on some logics, some reasons, or they may be in terms of tangibility. That is the appearance. That is the maybe that may be based on outer design of a brand or a product. So that are related to the performance of the particular brand. So they may also be more symbolic, emotional. There are some brands that are very emotional, like if I give you example of life insurance, life insurance corporation of India's tagline, that says जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. So these are the some emotional attachment or emotional offering to customers, that customers in some way finds himself or herself attached to these brands. So emotional appealing we are making. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टैगलाइन. देन इंडियन रेलवे सेज इंडियन रेलवे सेज ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ. सो इस तरह की जो हम अपना ब्रांड है उसका सिंबल हो सकता है, उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है. तो हम किस वे में अपने ब्रांड को कस्टमर के बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं कस्टमर्स के बेस जो है बीच में, वो सारी हमें चीजें क्या कहते हैं जो है एक ब्रांड बताता है. लाइक आईसीआईसीआई बैंक है, उसका क्या टैगलाइन है, ख्याल आपका. तो दीज आर द सम taglines or some are the can also say sign, or you can also say they are the emotional attachment or emotional messages that particular brand has. Like Punjab National Bank has a tagline as uh, uh, a अ बैंक यू कैन बैंक अपॉन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भरोसे का बैंक. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे एग्जाम्पल देने का पर्पज यही है कि हम जब किसी ब्रांड का बात करते हैं तो उस ब्रांड का मतलब क्या होता है. एक तो हमें डिफिनेशन कहता है कि एक नेम हो सकता है, टर्म हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल, डिजाइन, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसका पर्पज है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन द सेट ऑफ लॉट्स ऑफ ब्रांड सेट्स, और उसके बाद फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कुछ मैनर में फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स ब्रांड. वो पर्पज है. फिर उसके बाद जब हम होलिस्टिक उसके डिफिनेशन पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि क्या कहता है कि हमारा ब्रांड एक, ये अपना नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन होने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसा मैसेज है, उसकी कुछ ऐसे कॉमन टैग लाइन है जो उसको सिग्निफाई करती है कि यस, दिस टैगलाइन और दिस पर्टिकुलर ब्रांड हैज दिस टैगलाइन एंड दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू दिस ब्रांड. So we can easily identify that particular brand. So this is the definition of brand, that says it is a name, a term, sign, symbol or design, or a combination of these 5 items that has very objective to identify the goods or services of one seller or group of sellers, and to differentiate them from those of competitors. So we are making a difference between the brands of competitors. And the holistic definition given by Kotler and Keller, it says the same message, but it says it in holistic way. So they may also be more symbolic, emotional, or intangible, related to what the brand represents or means in a more abstract sense. तो हम बहुत छोटे शब्दों में बता देते हैं कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, या दिस इज राहुल. यस सर, प्लीज सर.
So what I need to do? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Mhm. So I'm sorry, I am getting calls again and again. No issue, sir. Okay, thanks a lot. So we were discussing the definition of a brand. So this is the definition. Now moving, what roles or functions a brand can serve. So the first objective, help identify the maker of a product. So I am identifying the manufacturer or maker of a product. That particular product has been made by this particular seller or producer. Signals a certain level of quality, because when we go for branding or when we talk about brands, that brand, particular brands signifies that this particular has some level of quality. So when we talk about in clothes like Gucci or Armani or whatever brand you may think of, why we talk about these brands? Because we do know that these brands have some level of quality. They are better than others. Protection again, how the protection is for both, for the consumers as well as for the producers. For the producers, it protects its brand in legal sense. That suppose I have a particular brand and that brand has got its popularity, that brand has got its attention in the marketplace, and there is someone who imitates or copies my brand or copies my product. So I can file a case in court of law and I can get protected my brand. So from the perspective of producer, from the perspective of firm, from the perspective of company, from the perspective of a seller, it gives him legal protection. If someone copies or imitates his brand, he can file a case in the court of law and get protected his or her brand. For the producer, that is the legal protection, and for the consumers, it protects them against spurious brands, that is local brands, that they are assured of a certain level of quality. So if someone copies a particular brand and sells the product under that brand name to consumers, consumer may get to know that this particular brand is not of original quality, because when someone copies that brand, the quality of that particular product will be less in comparison to original set of quality of that brand. So it is giving protection to both the firm as well as to consumer. The firm is protected in legal sense, that if someone copies my brand or someone sells his or her goods under my brand name, I can file a lawsuit in the court of law and I can get protected my brand. अब for the consumer, अगर कोई उस ब्रांड के तहत मेरे को कुछ स्पूरियस प्रोडक्ट, कुछ नकली प्रोडक्ट को सेल करता है, तो मैं सिंपली उसको जो है क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस दैट ब्रांड डज नॉट बिलोंग टू ओरिजिनल ब्रांड. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और आप में से कई लोगों ने उस एग्जांपल को ऑब्जर्व भी किया होगा. सपोज आप दिल्ली के बाहर जाओ, ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली से 30-35 किलोमीटर बाहर जाओ,
तो जब आप पानी की बोतल को परचेज करते हैं, किसी भी ब्रांड को ले लो, आप सपोज करो बिस्लैरी की ले लो, तो आप जब उसको अगर ध्यान से देखो तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत अजीब होती है, वो बिस्लैरी नहीं होती। कहीं जगह में बिलेसरेली बिलेसरेली लिखा होता है, कहीं की जगह कुछ और लिखा होता है। यानी कि जो बिस्लैरी के ओरिजिनल स्पेलिंग है, वर्ड्स वो वही यूज करेंगे, अल्फाबेट्स वो वही यूज करेंगे, लेकिन वो जो है ओरिजिनल बिस्लैरी की जो स्पेलिंग है उसको नहीं यूज करते। तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट दिस वाटर बॉटल डज नॉट बिलोंग टू ओरिजिनल बिस्लैरी। So I can get protected as a consumer against spurious or duplicate brand। और एग्जांपल देता हूँ, रूरल एरिया में आप चले जाओ, जब आप क्या कहते हैं कभी अगर रूरल मार्केटिंग को पढ़ेंगे तो उसमें आप जितने भी ओरिजिनल ब्रांड होते हैं तो उनकी कॉपी आती है। कॉपी कैसे? अगेन वही स्पेलिंग की मिस्टेक कर दिया, जैसे लाइफ बॉय है तो उसकी जो स्पेलिंग है उसको अलग तरीके से डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके अगर मैं अवेयर हूं, मैं किसी ब्रांड को जानता हूं, तो मैं उसको जो है इजीली आइडेंटिफाई कर देता हूं। एक आपको और इवन एडिडास, या एडिडास, इवन एडिडास, तो जितने भी अगर हमें पता है कि ये स्पेलिंग है, ये उसका सिंबल है, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले जब नया नया जो है चाइना की कंपनीज ने इंडियन मोबाइल जो है इसमें इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था, एंटर किए थे, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स थे उनकी कॉपी निकाल रहे थे, उनकी कॉपी निकाल रहे थे। तो जैसे नोकिया की एग्जांपल दूं तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसकी कॉपी निकाली कि पूरा डिजाइनिंग वगैरह पूरा मतलब कि अलग था, और जो उसका ऊपर जो ब्रांड चिपका दिया नोकिया। तो जब आप उसमें जाते, उसको अगर कोई जो है बहुत करीब से ऑब्जर्व करता था, तो हम देखते थे कि जो उनकी जो वो ब्रांड नेम जहां पे वो स्टिक करते थे, उसको जहां पे वो लगाते थे, या तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता था वो बड़ा होता था या वो छोटा होता था। तो यानी कि जो अगर सपोज करें कि जैसे ये प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, इसको अगर हम प्रोटेक्शन को ओरिजिनल मान लें, ये हमारा जो है ओरिजिनल ब्रांड नेम है। अब इसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो उसमें लेकर आए चाइना वालों ने, या तो उनका जो नेम लिखा होता था प्रोटेक्शन थोड़ा या तो थोड़ा उनका यहां तक आता था, यानी कि यहां इतना बड़ा होता था जो है कि, या तो फिर उसको छोटा कर देते थे। तो जो एक स्टैंडर्ड साइज था कि हमारा जो डिफिनेशन जो ब्रांड नेम एक स्टैंडर्ड साइज में लिखा होता था, उस स्टैंडर्ड साइज से छोटा या बड़ा होता, तो हम इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि यस दैट प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ ओरिजिनल ब्रांड। तो इसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दे रहा है दोनों को, कस्टमर को भी दे रहा है और प्रोड्यूसर को भी दे रहा है। हेल्पफुल इन हैंडलिंग वेरियस फंक्शंस बाय द फर्म, तो फर्म को बहुत इजीली जो है हेल्प करता है। कैसे? सपोज करो कि मेरे को इन्वेंट्री जो है मेंटेन करनी है, तो उसमें मैं पर्टिकुलर ब्रांड नेम से, पर्टिकुलर नेम ऑफ प्रोडक्ट से जान सकता हूं कि यस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज लेफ्ट दिस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, सो आई नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। उसके अलावा मेरे को ऑर्डरिंग करनी है, तो वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये कंपनीज को हेल्प करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिक्योर करता है मार्केट प्लेस में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे सिक्योर करता है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय द वे होती क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे, मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे होंडा है, होंडा जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसमें है कि वो जो उनकी इंजन क्वालिटी है, कॉम्पैक्ट बनाते हैं बट बहुत रोबस्ट इंजन बनाते हैं, कॉम्पैक्ट इंजन बनाते हैं लेकिन बहुत रोबस्ट बनाते हैं। उसी के साथ सोनी की क्या है, जो सोनी ब्रांड है उसका क्या जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि जो वो डिजाइनिंग करते हैं, उनकी जो अगर आप टेलीविजन है या जो उसका स्टीरियो सेट्स है, वो बहुत उनकी डिजाइनिंग अपीलिंग होती है, तो वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि आई एम मेकिंग सम एडिशनल
input or some additional output in my brand that my competitors cannot. तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मेरे पे कुछ ऐसी खूबी है जो बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। तो जैसे अब मैं एग्जांपल आपको फूड आइटम्स करूँ, तो आप जो भी पिज्जा परचेज करो, बर्गर परचेज करो, जिस भी कंपनी को आप परचेज करो, आप एक इंडिया के किसी भी पार्ट में आप परचेज करो, तो उसका जो टेस्ट तो होता है वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। तो ये क्वालिटी होती है कि हम अपने ब्रांड के थ्रू अपने टेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। अब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो पोजीशन है उसको हम मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। तो वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ब्रांड से। तो ये हमारा जो है रोल है या फंक्शन है ब्रांड का, कि क्या रोल और फंक्शन वो प्ले करता है मार्केट प्लेस में। मूविंग अहेड, सो हाउ डू वी एस्टैब्लिश अ ब्रांड, हाउ डू वी डिसाइड अ ब्रांड। जब हम एक ब्रांड नेम को चूज करने जा रहे हैं, उसको हम डिजाइन करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या फैक्टर्स है या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि हमारा मेमोरेबल होना चाहिए। तो ब्रांड नेम बहुत शॉर्ट होना चाहिए और इतना मतलब कि नेम होना चाहिए कि हम हमारा जो कस्टमर है उसको आसानी से वो मेमोराइज कर सके, आसानी से उसको कॉल अप कर सके, आसानी से उसको प्रोनाउंस कर सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोनी, होंडा, हुंडई, मारुति सुजुकी, खैर अब तो अलग हो गई, मारुति अलग है, सुजुकी अलग है, नोकिया है, सैमसंग है। तो इस तरह के जो ब्रांड हैं उसका उसका फायदा क्या है। तो पहली बात कि मेरे जो कंज्यूमर्स है, मेरे जो कस्टमर्स है, उनको बहुत इजीली वे में, बहुत इजी वे में उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं और उनको आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब मैं कोई आपको ब्रांड नेम दो, सपोज करो कि सनसुई, हुआई एंड सैमसंग, ऐसे कुछ लंबा चौड़ा एक ब्रांड नेम दे दूं आपको। जैसे जब रेडमी आया था तो रेडमी जियोमी उसका पूरा नाम है, लेकिन उसको जियोमी ही बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर रेडमी बोलते हैं। तो पर्पज क्या है इस चीज का, कि हमें ब्रांड नेम ऐसा चूज करना है कि जो शॉर्ट हो, इजिली प्रोनाउंसेबल हो, उसको कस्टमर या कोई भी जो है आसानी से याद कर सके, और सबसे जो है बड़ा पर्पज है कि वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कि कोई ब्रांड पहले से इस्टेब्लिश है उसके मिलता जुलता कर लिया, तो दैट वोंट सर्व द पर्पज। क्यों नहीं सर्व करेगा पर्पज को? क्योंकि अगर जो है एग्जिस्टिंग ब्रांड होगा तो कस्टमर्स को लगेगा, तो वो सोचेगा कि ये वही वाला ब्रांड है। क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे ब्रांड्स आ जाते हैं कि जिनको हम इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हुंडई है, हुंडई जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जो होंडा है, कई लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने ब्रांड को डिजाइन करना है। खैर अब तो वो काफी मतलब की पॉपुलैरिटी हो गई, तो उसके बाद कस्टमर्स जो है एक डिफरेंस करने लगे हुंडई एंड होंडा के बीच में। बट स्टिल सम पीपल, देयर आर सम पीपल हु गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ब्रांड्स। तो पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए जब आप ब्रांड नेम को डिजाइन करने जा रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कि ये मेमोरेबल होना चाहिए। दूसरा मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल इन द सेंस कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को वो सिग्निफाई करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को वो सिग्निफाई करना चाहिए। अब सपोज करो कि आप जो है डील कर रहे हैं किसी जो है उसमें अदर सेट में, और आपने उसको ब्रांड नेम कुछ अलग दे दिया जो आपके प्रोडक्ट के मिलता जुलता नहीं है। तो मीनिंगफुल कहने का मतलब है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ब्रांड नेम सच दैट इट signifies or reflects the product that you will be selling under this brand. अब जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, तो ये जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये जैसे कोका कोला है, तो कुछ सेंस में जो है क्या कहते हैं, ये सिग्निफाई करता है कि यस दैट पर्टिकुलर ब्रांड बिलोंग्स टू अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। तो ये जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा ब्रांड नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकल गया है, और हमारे प्रोडक्ट से जो भी हम उसके ब्रांड नेम के उस ब्रांड नेम के अंडर में सेल करेंगे उसको सिग्निफाई करना चाहिए। लाइकेबल होना चाहिए। लाइकेबल का मतलब है कि कस्टमर इसको पसंद करे। तो वही घुमा फिरा के बाद जो हमारा ये मेमोरेबल ब्रांड नेम की बात आ रही है वही आ रही है। ट्रांसफरेबल, तो इजिली आप ट्रांसफरेबल कर सके उसको,
कि सपोज करो कि आप उसके कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप सपोज करते हैं कि जब मर्जर होता है, जैसे वोडाफोन आइडिया, दोनों का मर्जर हुआ तो इजिली उनको क्या कहते हैं, हमने एक कंबाइन करके अलग एंटिटी बना दी। जो पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, उसको वोडाफोन आइडिया, तो इजिली हम उसको एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं। अब जैसे आज से कुछ साल पहले अराउंड 2010 में, 2010-11 में जो जैगवार कंपनी है, जो आज हम जैगवार सॉरी लैंड रोवर जो है, रेंज रोवर या लैंड रोवर है, उसको टाटा ने बोर्ड किया था। तो टाटा उसको जो है क्या कहते हैं, टाटा लैंड रोवर या रेंज रोवर जो भी कंपनी उसको बोर्ड किया था। तो कहने का पर्पज ये है कि हम ऐसा ब्रांड नेम सिलेक्ट करें कि जिसको हम आगे चल के इजिली ट्रांसफर कर सके। इस ट्रांसफर का मतलब है कि अगर हम उसको मिला के और दूसरे ब्रांड को मिला के कोई नई आइडेंटिटी बनाना चाहे, नई कंपनी बनाना चाहे, तो उसको हम इजिली कर सके। अब सपोज करो कि आपका कोई ऐसा ब्रांड नेम है बहुत लंबा चौड़ा है, और दूसरा जो है तो उसको वो भी लंबा चौड़ा, तो उसको बनाने में बहुत दिक्कत आ गई। अब एग्जांपल दो आपको, जैसे रेडमी Xiaomi है, ये एक ब्रांड है। अब इसमें सपोज करो कि आप हुआई को ले आते हो, जो अगेन चाइनीज कंपनी, तो तीन आपके मतलब कि अगर इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो लगेगा कि तीन डिफरेंट ब्रांड, बट देयर आर ओनली टू ब्रांड्स। और जब आप इसको मर्ज करेंगे, जब आप इसको मर्ज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो दैट विल बी प्रोनाउंसिएशन लाइक रेडमी Xiaomi हुआई, तो इस तरीके से जो होती है, या हुआई रेडमी Xiaomi, तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू make your brand as compact, as short as possible, adaptable। तो आप अगर सपोज करो कि आपको फ्यूचर में चल के उसमें कोई चेंज करना है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको अडेप्ट करना है, तो वो आप कर सके। एंड द लास्ट वन, प्रोटेक्टेबल। यस, in order to get legal protection against misuse of your brand, it must have some distinctive quality, it must have originality or originality। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब हमारा जो ब्रांड है वो प्रोटेक्शन दे रहा है, कस्टमर को भी दे रहा है प्रोटेक्शन और फर्म को भी दे रहा है। कैसे कि कस्टमर को इस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है कि हमें जो है, अगर कोई स्पूरियस प्रोडक्ट सेल करता है, अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करता है, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज दैट ब्रांड। और फर्म को कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है कि अगर किसी ने मिस यूज किया उस ब्रांड का, उस ब्रांड के अंदर वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिस प्रोडक्ट के लिए वो ब्रांड बना ही नहीं था, तो उसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो that was the very brief introduction of branding and what does brand mean and what are the rules of branding and what are the factors that we should keep in mind while going for choosing a brand. So that's all for today, and thank you very much for joining me. Have a